when we started with the chapter, the heading was control and coordination, and we always said control and coordination happens between two systems. One was the chemical coordination, right? Another was your nervous coordination. So the two things that were coordinating. So the chemical part, till now we were studying the nervous part, where we're just talking about different parts of the brain, your central nervous system, and the entire each and every part related to the central. So basically, what exactly was responsible for coordination? It was your nervous system and endocrine system, right? So nervous means, the networks of nerves that's coming together, forming the basic simple unit जो था nervous system का, that was your nerve cells and your glial cells, supporting cells, right? And now we are going to talk about the chemical part, the system that produces the chemical, and you call that. And for making the chemical, we studied that 4 types were there. अपने लिए जब होता है ऑटोक्राइन बोलते हैं, सेल जब पड़ोसी के लिए करता है तो उसको पैराक्राइन बोलते हैं, सेल जब केमिकल बनाता है किसी दूर के सेल के लिए तो एंडोक्राइन बोलते हैं, और अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए होता है तो उसको फिरोमोन्स बोलते हैं, राइट? So we were just starting with this new topic, endocrine system. तो basically ये system होता क्या है? Let's underline it from here. The endocrine system controls body activity. How? कैसे? By means of chemical messenger. और इन chemical messengers को हम बोलते क्या हैं? Hormones. क्या बोलते हैं? Hormones. हमने पिछले लेक्चर में वी अंडरस्टूड एंडोक्राइन्स ग्लैंड कौन से होते हैं जिनके डक्ट नहीं होते, तो कैसे वो अपने हार्मोन्स को सेंड करते हैं, हाउ दे एक्चुअली ट्रांसफर इट. इट इज़ डन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट? सो हार्मोन आर कैरीड इनटू द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर when you study. जो अमाइंस हैं सिंपल अमीनो ग्रुप से बने हुए हैं, दे वुड बी अमाइंस, एंड जो सिंपल अमीनो एसिड से बने हुए हैं हम उसको पेप्टाइड हार्मोन्स बोलेंगे, और जो प्रॉपर प्रोटीन से बने हैं लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड TSH, your gonadotropins, that's protein hormone. Then something which is made up of prostaglandin, kind of fatty acid derivative. So these are depending upon the formation, chemical nature के हिसाब से. Steroid means that's formed out of lipid. For example, your testosterone. Okay, most common. Testosterone सबसे common हमारी बॉडी में पाया जाता है. एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइड्स है. सो बेसिकली अच्छा, गैस के लिए बोला है कि कोई हार्मोन अभी तक ह्यूमन बॉडी में और ऑर्गेनिज्म में नहीं है, बट इन प्लांट्स इट इज़ देयर. इथाइलिन जो बोलते हैं, राइपनिंग के काम आता है. जब कच्चे केले एक साथ रखते हैं उसके अंदर इथाइलिन गैस लगाते हैं. So what happens? कच्चे केले पक जाते हैं. So that is the gaseous hormone. So now let's understand the property of a hormone. Number 1, what do? They are the chemical messenger. And बहुत कम concentration में भी बहुत अच्छी तरह काम करते हैं. और number 2, they have a specific process. मतलब उनका ऑलरेडी दे हैव अ प्रोग्राम, ऐसा नहीं होता कि हार्मोन जो डाइजेशन के हैं कुछ और काम करने लगेगा. नो, दैट विल बी ओनली डूइंग द डाइजेशन वर्क. सो दे आर वेरी स्पेसिफिक. देन व्हेन यू टॉक अबाउट द हार्मोन, so when you talk about these hormones, if they are in adequate amount, मतलब उनकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए. अगर ज़्यादा होगा तो डिसऑर्डर, कम होगा तो डिसऑर्डर. सो बेसिकली व्हेन यू से हाइपर सेक्रीशन एंड हाइपोसेक्रीशन, हाइपर मीन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है. जब आप ग्रो कर रहे होते हो
तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम, so it will cause a big difference in the height in you as compared to your classmates and your friends. So you call that as gigantism. This picture is very clear to you. If there was too much of growth hormone produced at the time of puberty, that person gets gigantism. So excess, जो उसका normal height होना चाहिए था इतना, now उसकी height is extra, right? So that's excess. So hypersecretion हो गया particular hormone का. So now we'll understand the mechanism also. Now first, कैसे ये hormones काम करते हैं. ये hormones जो होते हैं बहुत ही छोटे amount में, they are released in a very small amount because they produce a big effect. ऐसा नहीं है बहुत सारा चाहिए तब जाके इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा सा बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है. सो उनको फंक्शन करने के लिए 11th में देयर वाज वन टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड, दैट्स काइंड ऑफ रिसेप्टर और वी कैन से लॉक एंड की मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म का हमने पढ़ा था. सो उसका थोड़ा हिस्सा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. दिस पिक्चर शोज डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. You have the pituitary gland, then you have thyroid gland, thymus gland, then on top of the kidney you have adrenal gland, and females have ovary and males have testis. So these are the endocrine gland that is responsible, or we can say the chemical part. हम लोगों ने जो बोला hormone producing organs or glands. Let's go to the next page. How do these hormones act? Generally, we have two ways by which the hormones combine to do the result. Okay, result लाने के लिए hormone को काम करने का दो तरीका है. जो आपके सामने है, this is a general structure of a cell membrane. Cell membrane दिमाग में आए तो आपके पास होना चाहिए phospholipid bilayer. 11th में we have studied the plasma membrane or cell membrane structure. Okay, so for a moment let me just tell you that. So what is this layer made up of? This layer is any organ जिसके surrounding का membrane कैसा होता है? phospholipid. It's bilipid layer. और हमने समझा था like this, it forms one layer on top and the second layer is down. So two layers are there. That's why we say bilayer, phospholipid bilayer, and you call it as the membrane responsible for forming your cell membrane. Cell wall, cell membrane. Cell wall बोलते ही आपके दिमाग में आया होगा plant cell. Cell membrane बोलते ही animal cell, right? So जितने भी membrane है उसका construction ऐसे बना है. So you don't have to confuse yourself. This is just telling you two ways by which hormones work. दो तरीका है. सबसे पहला तरीका it's very simple. जो हार्मोन होता है वो एंटर नहीं करता सेल के अंदर. क्यों? क्योंकि जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन वहीं पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर के साथ वो जस्ट वहीं पे रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्स क्रिएट करता है इनसाइड द सेल. सो दिस वॉज बाय नॉट एंटरिंग, क्योंकि ये जो हार्मोन है दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल. जो दूसरे टाइप के हार्मोन है विच आर लिपिड सॉल्युबल वो एंटर करते हैं. लाइक दिस एग्जाम्पल, एस्ट्रोजन इज़ अ लिपिड सॉल्युबल. सो वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके रिसेप्टर के साथ कंबाइन करते हैं. सो लेट्स गो टू दैट पार्ट. सो दिस इज़ व्हाट इट सेज हियर इन दिस टेक्स्ट बुक on page number 208. Different ways by which hormone will work. Number 1, जब hormone lipid soluble नहीं होते, they are not lipid soluble, तो they cannot, read the third line, they cannot enter their target cell. तो वो काम कैसे करते हैं?
सरफेस पे ही रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ वो कंबाइन करते हैं, जिसके वजह से फर्दर रिस्पॉन्स होता है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. यू हैव फर्स्ट गोनाडोट्रोफिन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो उसे बाइंड करता है. उसके रिस्पॉन्स में इट फॉर्म्स कैल्शियम आयन और दे कैन फॉर्म एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ATP सुना है ना, उसका स्टार्टिंग के 2 फॉर्म में से सबसे पहला वाला होता है मोनोफॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट लगा. सो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनता है या कैल्शियम आयन बनता है, जिसके वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है. बायोकेमिकल में इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल केमिकल चेंजेस हैपन. इट इज़ इनसाइड द लिविंग बॉडी, सो इसीलिए हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है. एंड इस रिस्पॉन्स का नेक्स्ट स्टेप होता है फिजियोलॉजिकल चेंज. FSH प्रोड्यूस हुआ इन अ प्यूबर्टी स्टेज विच इज़ ब्रिंगिंग टू दिस लास्ट स्टेप, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ ओवरी. सो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी होने के लिए FSH एज अ हार्मोन इज़ वर्किंग. लेकिन याद रखो, यहाँ पे FSH डिड नॉट एंटर इनसाइड द सेल, as FSH is a non-lipid soluble hormone. Non-lipid soluble hormone. So it cannot enter. तो फिर क्या होता है, सरफेस रिसेप्टर पे वो बाइंड करता है ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो रिस्पॉन्स कर सके. सो रिलीज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हैपन थ्रू द रिसेप्टर साइड, जैसे कि नंबर 1 AMP बनता है या कैल्शियम आयन बनता है, जिसके रिस्पॉन्स से केमिकल चेंजेस होता है, बायोकेमिकल चेंज जिसे बोलते हैं. एंड एट द एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट, ओवरी का डेवलपमेंट. ओके, सो दिस वाज डेवलपमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर body part, and that's important. That's a gamete forming organ, right? If something like this does not happen, what will happen? The person will not be able to have a developed ovary. Now let's talk about the next hormone method. मतलब 2 तरीके होते हैं हार्मोन के काम करने के लिए. अब ये जो हार्मोन वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर लिपिड सॉल्युबल. जो पहले वाला हार्मोन था, दे वर नॉट लिपिड सॉल्युबल, दे वर, दिस इज लिपिड सॉल्युबल. तो इसीलिए वो सेल के अंदर जाता है और सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो उसका रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करता है और फिर बॉडी में चेंजेस लेके आता है. लेट्स सी दिस. दिस इज़ द यूट्रस वॉल. This is the uterus wall. So we have the estrogen as a hormone. That estrogen can easily enter into the cell because वो lipid soluble है. Enter किया तो न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर था उसके साथ वो बाइंड किया, जिसके वजह से रिस्पॉन्स दिया गया और प्रोटीन वॉज फॉर्म्ड एंड देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू. तो अभी हम यूट्रस के बारे में बात करें तो आपका यूट्रस प्रॉपरली डेवलप होता है. सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस? दैट्स द एस्ट्रोजन हार्मोन which is the lipid soluble hormone. So now we have understood 2 mode of action by hormones. जब हार्मोन लिपिड सॉल्युबल नहीं होता तो वो बाहर एक्ट करता है, और जब हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होता है वो अंदर जाके एक्ट करता है. राइट? सो दैट्स वेरी सिंपल एज इट इज़.